Hello. Good morning, students. How are you? Say fine, ma'am. I'm also fine. I'm great. See, I'm standing in front of you. I'm looking great now. So you should also speak like this. Good morning, ma'am. We are great. We are fine. So हमने जो लेक्चर किया था पहले उसमें बताया था ना मैंने I told you at that time कि what you should say. You should say, hello, ma'am. How are you? I'm fine. And thank you. Great. So what we did yesterday? पिछले लेसन में हमने क्या किया था? कुछ याद है कि यू कैन फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग जो भी करवाया जा रहा है. बी रिमेंबर दैट थिंग. ओके, बी टेक दिस थिंग इन योर माइंड. बी रिमेंबर, डोंट बी फॉरगेट. क्या किया था हमने? कैन आई टेल यू और यू टेल मी? आप बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी आपको. मैंने तो करवाया था. Now just to check your knowledge that do you remind that or not? Isn't it? Okay, so what we did? क्या किया हमने? हमने किया था introduction, right? How to introduce yourself to the strangers or to the other persons. Clear? That we did yesterday. In the last lesson, what we rest of the things did? We did parts of speech. We have 8 parts of speech with ourselves. Clear? In that parts of speech, first is what? 8 parts of speech we did, and we did also that 10 sentences. All are clear to you? Sentences में क्या था? 5 sentences थे हमारे पास. Clear? We did that 5 types of the sentences. And after that, what we did? We did parts of speech. Parts of speech, I told you earlier, it's the base of the grammar. Without the parts of speech, you can't be know कि हम कैसे ग्रामर बोलें, कैसे ग्रामर लगाएं इंग्लिश में, कैसे सेंटेंसेस बोलते हुए हम लगाएं. Without that, you won't be even speak single line. If you don't know about that, clear? And if you know very well about that you can be easily speak very good English, isn't it? Why we people are here? We people are here to speak something. ठीक है, to speak something at that time your grammar should be clear, your basics should be clear. तो बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया था एक फंडा की सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी कैन बी कवर इट आउट. व्हाट वी आर कवरिंग इन दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी डिड. जल्दी से रिमाइंड कीजिए और मुझे बताइए क्या की थी. हरी अप, बी फास्ट. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से थे? नाउन, यस. सेकेंड, pronoun, good. Third one, remember it, hurry up. Third one is adjective, right. Noun is a name of a person or thing. Pronoun is used instead of noun. And adjective is what? Which gives meaning to noun or pronoun, isn't it? And jaldi se be fast, hurry up. Fourth one, verb. When an action performed by the subject, that is called verb. And what is that verb? Fifth one, which gives meaning to verb, not to noun and pronoun, but only to what? Verb. And sixth one is what? Conjunction, which joins the sentences or words. That is called conjunction, isn't it? And what we say to the 7th number, what we did on 7th number? We did interjection. In interjection, what's there? Your sudden feelings or emotion come out from you. Okay? What we did means your sudden emotions or feeling like wow, hurrah, excellent. So these are called the interjections. And the 8th one is preposition. That is very, very much needed in your like all the grammar portion and all. Clear? और आज हम today's lecture I'm going to start with the noun. Clear? Parts of speech में I told you what is noun. So आज हम इसे डिटेल में करेंगे. We did it in, we will do it this in full detail and all. Clear? See here, what is the definition of noun? Firstly, write it down the definition. Clear? So what is noun? A noun is a word used as a name of a person, place or thing. Write it down in your copies. A noun is a word used as a
name of person, place or thing. Isn't it? We did now? Remember that? Good. Or we are having different types of nouns in that. First हम करेंगे सबसे पहले to thing. We can be cover it out the thing in that. Things में कौन कौन से noun आते हैं तुम्हारे? For example, this duster. Duster is what? Duster is a thing. मैंने कल भी बताया था आपको previous lecture में I told you this thing. Duster is what? Duster is a thing. Pen is a thing. Book is also a thing. Clear? So these are denoted as a things now. Clear? And come to the place now. What we say to the place? Place means jagha. कोई भी जगह we can be said of. For example, you are living in a village. So village is what? आप village में रह रहे हैं, आप city में रह रहे हैं. तो ये क्या है? What is this? This is a noun. So you should be write it down here like village, city, or any town. Or you should be also say the name of that place in that. Clear? Like India, Delhi, Uttar Pradesh and all. You should be write it down this. This is also a noun, Uttar Pradesh and India. India is also a noun here. Is it clear to you? Now come to the person. Thing we did, place we did. Now come to the person. Person means, you know it very well, किसी व्यक्ति का नाम. अब किसी व्यक्ति का कोई भी नाम हो सकता है. Clear? Let it take the example of Tom. Tom is the name of a person. Let's take another name, I want to be say it out, Sana is my friend. So Sana is what? Again, a name of a person. If I want to say Mohan is my good friend. Mohan is my good friend. So what you can be say it out in this? Mohan is, again, person. Clear? So 3 types we did in the noun. Now come to the that noun which only express the views of yourself. So what you can be say it out? Express quality. Which express your quality. For example, honesty. That is again noun. Clear? अब कुछ काम करना है तो and all, that is also come in a noun like work, zindagi, life. That is also a noun. So these are some examples of noun that we can be cover it out in this noun session. Clear? Note it down very fast. Hurry up. Then I'll give you the example of the sentences regarding this one. Okay? So that you can easily clear about the things and all. Clear? अभी हमने सिर्फ names किए हैं. अभी नाम है. इसके बाद we are making a sentences on that. That how we make a sentence, and from sentence how we can be grasp it out the nouns from that. How we pick it out the nouns from that. Clear? So write it down. Be fast. Hurry up in your copies. These all things. These all the examples of the noun. Do fast. Hurry up. Done? Should I rub this? Okay. Now come to the sentences. How we make a sentence on noun?
फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी से इट आउट, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो उसे मैं कैसे बोलूंगी? आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। क्लियर? अब मैं बोलूंगी ये मेरी कुर्सी है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक चेयर पड़ी है, आई वॉन्ट टू बी से इट आउट, दिस इज माई चेयर। वॉट यू कैन बी से, दिस इज माई चेयर। सो राइट इट डाउन, दिस इज माई चेयर, ये मेरी कुर्सी है। अब बुक का क्या यूज हुआ यहां पे? यू आर यूजिंग बुक एज अ नाउन एंड चेयर इज अगेन व्हाट? इट्स अ नाउन। वेरी गुड। अब मैं 2 एग्जाम्पल्स और लिखूंगी, आप लोग मुझे बताएंगे उसमें से नाउन क्या है। क्लियर? मैं बोल रही हूं ये मेरा गांव है, इट इज माई विलेज। ये मैंने बात की, ये मेरा गांव है। अब आप लोग इसमें से मुझे बताइए नाउन क्या है। अभी मैंने आपको, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। सो टू फाइंड आउट अ नाउन फ्रॉम दिस सेंटेंस, इज इट इज अ नाउन? क्या इट नाउन है? बताइए, टेल मी, हरी अप। नो। वेरी गुड। नो, इट इज नॉट अ नाउन। क्या इज नाउन है इस सेंटेंस में? नो। इज ऑल्सो नॉट अ नाउन हियर। एंड व्हाट वी से टू माई, अगर आपको याद होगा इन अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज माई? माई किसको डिनोट कर रहा है? मुझे। जब मुझे को हम इनडायरेक्ट वे में इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, दैट इज प्रोनाउन। सो ये तो प्रोनाउन हो गया, तो ये तो नाउन है ही नहीं, है ना? सो दिस इज अ प्रोनाउन। अगेन दिस इज नॉट अ नाउन। सो व्हाट इज लेफ्ट? विलेज। विलेज क्या है? विलेज किसी जगह का नाम है, राइट? सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ नाउन। वेरी गुड। अब मैं एक और एग्जाम्पल दूं आपको। अब मैंने बोला कि मोहन एक अच्छा लड़का है। चलिए आइए, अब आप लोग मुझे बताइएगा इसमें से, मोहन इज अ गुड बॉय। यू टेल मी फ्रॉम दिस सेंटेंस how many nouns are there, or is there a single noun or is there a double noun used in the sentence? क्या इसमें एक नाउन यूज हुआ है और क्या 2 नाउन्स यूज हुए या कोई भी नाउन नहीं यूज हुआ है? बताइए मुझे जल्दी से, हरी अप, बी फास्ट। मोहन इज अ गुड बॉय। अब इज तो हो ही नहीं सकता नाउन, है ना? ए इज नॉट अ नाउन। बाकी बचे गुड, बॉय और मोहन। इज गुड अ नाउन? क्या गुड एक नाउन है? बताइए, टेल मी। गुड नाउन है? नो, गुड इज नॉट अ नाउन। बॉय इज अ नाउन। अब बॉय की विशेषता बताई जा रही है, तो दैट इज एडजेक्टिव, दैट इज नॉट अ नाउन। एंड व्हाट इज मोहन? नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन। क्लियर? एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल इन दैट। मैंने बोला मैं पत्र लिख रही हूं। क्या बोलूंगी मैं? आई एम राइटिंग अ लेटर। क्लियर? अब बताइए इसमें नाउन क्या है इस सेंटेंस में? अभी मैंने बताया था जैसे माई किसको डिनोट कर रहा है? प्रोनाउन को। मीन्स ये इंस्टेड ऑफ नाउन यूज हो रहा है। आई इज ऑल्सो यूज एज अ इंस्टेड ऑफ नाउन। क्लियर? So it is a what? It is a pronoun. It is not a noun. Am is not a noun. It's a verb. A is not a noun. क्यों? क्योंकि A and the क्या होते हैं? These are the articles. So what is letter here then? And what is writing here? Is writing a noun? क्या writing एक noun है? No. Writing क्या है? Action perform कर रहा है subject कुछ. Clear? सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट लिख रहा है इसमें। तो राइटिंग क्या है? ये वर्ब है। इट्स नॉट अ नाउन अगेन। सो लेटर इज अ नाउन इन दिस।
Write it down, these examples, 1, 2, 3, 4. These 4 examples in your copies so that it must be clear to you people. Hurry up. Write it down. Be fast. Done? Okay. That's really good that you did. अब बताइए नाउन क्लियर हुआ, बेसिक नाउन का क्लियर हुआ. अब हम आते हैं कि नाउन की कितनी प्रकार की किस्में होती हैं. क्लियर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, एंड इट शुड बी ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. If you don't know about this, that how you can be tell to other person that which noun is this, which noun is that. So it's also a very deep in the grammar portion. So you should be know this thing. Now come to the kinds of noun. Write it down in your copies, kinds of noun. We are having 5 kinds of noun and we divided that 5 kinds of noun into the 2 types. Clear? One is the concrete noun and second one is the abstract noun. Clear? हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट नाउन आएगा concrete noun and second one is abstract noun. प्रोनाउंसिएशन प्लीज नोट कीजिएगा, जैसे मैं बोल रही हूं आपको वैसे ही उस चीज को प्रोनाउंस करना है, मतलब उसका उच्चारण करना है. फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे? कंक्रीट. क्लियर? और इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट. व्हाट वी गोइंग टू प्रोनाउंस? एब्स्ट्रैक्ट. वेरी गुड. पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? बोलने का मेरे साथ. क्लियर? And after then, in the concrete noun, again there are lots of types of noun. In concrete noun, first one is we are having in this, that is proper noun. In second concrete noun, we are having common noun. Okay? A third one, here it is collective noun. And fourth one is your material noun. And fifth one is your abstract noun. We are not having any types of abstract. Clear? इधर देखिए ध्यान से. Look here, abstract noun की हमारी और किस्में नहीं है, but we are having a different types of concrete nouns. So these are the kinds of all noun we are having with us. Clear? Note it down in your copies, hurry up. So you are having a total 5 nouns. First, second, third, fourth and fifth. Clear? So अब हम इन 5 types of noun को डिटेल में रीड आउट करेंगे, ये होते क्या. Clear? Done? You wrote it? Now come. First we are going to explain, I'm going to explain you concrete noun. Look at the board. कंक्रीट नाउन कौन से नाउन्स होते हैं? कंक्रीट नाउन वो वाले नाउन्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. क्लियर? टच करेंगे और हम देख सकते हैं उन्हें, फील नहीं कर सकते उन्हें. क्लियर? तो दैट इज कम इन द कंक्रीट नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो मैंने डिफरेंट कैटेगरी बताई थी, उसमें क्या है, आप चीजों को फील कर सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते, ना आप देख सकते हो. बट इन कंक्रीट नाउन जो भी हमने 4 टाइप्स अभी बताई मैंने आपको, दैट इज ऑल कम इन दिस वन. क्लियर? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल
विशेषता, अवस्था और कार्य को नाम को बदलने के लिए हम उसे यूज करते हैं। क्लियर? जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनका कॉन्क्रीट नाउन का मोहन। मोहन क्या है? मोहन इज व्हाट? मोहन इज अ पर्सन, सो यू कैन टच मोहन एंड यू कैन सी ऑल्सो मोहन। गुड। एंड बुक, बुक इज व्हाट? Book is a thing. You can touch book. You can see also that one. Isn't it? And next one is gold. Gold is what? Gold is a material noun. So this is also you can see and you can touch. And next one is the committee. Committee is what? Committee is again which noun? कलेक्टिव नाउन है ना। कमेटी को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कौन कौन मेंबर्स, किसी मेंबर्स से ही कमेटी बनती है ना। मेंबर्स को कोलैबोरेट करके, कलेक्शन करके उसकी एक कमेटी बनाई जाती है, तो उसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। क्लियर? और व्हाट वी से टू ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या इसे हम टच कर सकते हैं? क्या ईमानदारी को हम देख सकते हैं? नो। सो ये किस में आएगा? इट्स नॉट कम इन द कंक्रीट नाउन, इट्स कम इन द abstract noun. ये concrete noun में आते हैं और ये that comes in your abstract noun. और abstract noun में क्या आता है? जैसे हंसी, हंसी को हम क्या बोलते हैं? laughter. क्लियर? ये भी आपका abstract noun में आएगा। So there are lots of things that come in the abstract as well as in concrete noun. अब हम डिटेल में करेंगे concrete noun. फर्स्ट नाउन जो आपके पास आता है concrete में, that is proper noun. अभी मैंने आपको बताया है what is proper noun. Proper noun is the name of a particular person or thing. That is called proper noun. अब किसी भी particular person और thing के नाम को हम क्या बोलेंगे? Proper noun. Clear? Name of a particular place or thing or person. That is called proper noun. For example, मैंने किसी जगह की बात की, मैंने बोला ताजमहल। ताजमहल क्या है? पर्टिकुलरली मैं उस मॉन्यूमेंट का नाम बता रही हूं कि क्या है? ताजमहल। आई एम नॉट सेइंग मॉन्यूमेंट, आई एम सेइंग ताजमहल इज अ वेरी गुड एंड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? सो ताजमहल किस में आएगा? ताजमहल इज कम इन द proper noun. Clear? If I want to be say any name of a person, for example, I want to say Ravi. Ravi is what? Ravi is again noun, proper noun. Why it is a proper noun? Because we are particularly putting out the name of a person here. Clear? That is why Ravi is a proper noun. And what come next? एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। क्या दी थी? मैंने बताया था प्लेस में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, इंडिया। यू आर पर्टिकुलरली सेइंग द थिंग्स। उत्तर प्रदेश इज अ गुड स्टेट. स्टेट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, बट उत्तर प्रदेश इज अ प्रॉपर नाउन हियर. सो यू शुड से उत्तर प्रदेश. क्लियर? And what comes, any day's name, any month's name, that is come in this one. Any day can say Saturday. It's also a proper noun क्योंकि हम particularly उस दिन का नाम बता रहे हैं इसमें. Clear? Particular हम अगर किसी month का नाम बताएंगे तो that is come in the proper noun. But month किस में आएगा? Common noun में आएगा. मैं अभी आपको difference clear करूंगी. पहले आप proper और common कीजिए, then I'll make the difference between both of them. Clear? So that you must be clear, the whole the things. For example, I want to be say, कौन सा महीना? Like March. March is what? It's a proper noun. क्यों ये proper noun है? क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं particular name. किसका? उस month का नाम बता रहे हैं हम.
क्लियर हुआ? सो दैट इज कम इन द प्रॉपर नाउन. नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में. हरी अप, नोट दिस डाउन इन योर कॉपी. डन. चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं. कौन सा नाउन आएगा नेक्स्ट? यस, कॉमन नाउन करेंगे अब हम. क्लियर? नाउ कम टू द कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन कौन से होते हैं? विच नॉट टेल अबाउट द पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग. क्लियर? Which not tell about particular place, person or thing. For example, मैंने अभी आपको बताया था ताजमहल इज अ गुड मॉन्यूमेंट. क्लियर? मॉन्यूमेंट क्या है यहां पे? स्मारक. क्लियर? So monument, common noun. If I want to be talking about the any man, I said all men are not so good. Clear? So man is what? मैं किसी particular man का नाम ले रही हूं यहां पे? No, I'm not taking a name of a particular man. I'm just saying man. So man is what? Man is come in your common noun. If I talk about any book, I'm not giving them a name, not particular name to them. I'm saying this is my book. I'm not saying any name to them like computer electronics books is mine. So at that time it's come in the particular noun. Clear? Because I'm giving them the name to the book. But right now what I am saying, this is my book. मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी बुक है. कौन सी बुक है? क्या मैं उसे पर्टिकुलर नेम से बता रही हूं? नो, आई एम नॉट गिविंग देम अ पर्टिकुलर नेम. सो एट दैट टाइम इट्स कम इन विच? इट्स कम इन कॉमन नाउन. राइट? सो राइट इट डाउन. बुक is also come in your common noun. Anything like chair, I'm not talking about the particular chair here. Clear? So if I want to be say any name of Ganga is a pious river. So river is again common noun here. Note it down this. Is it clear now? Common noun. कोई doubt तो नहीं है इसमें? Very good. So common noun is that which is not telling about the particular person, place or thing. Clear? So I gave you some examples in that. Write it down in your copies and after that I make a comparison in both of them like proper noun और common noun ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए. कॉमन में क्या डिफरेंस है और प्रॉपर में क्या है. क्लियर? राइट इट डाउन. हरी आप. Okay, come here. Now, I'm going to explain you the difference between here is proper noun and here is the common noun. I'm writing down the sentences here. I'm saying Mohan is a good boy. अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, मोहन इज अ गुड बॉय. अब मुझे बताइए इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है? टेल मी, हरी अप. मोहन इज अ गुड बॉय. मोहन
क्या है? कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? यस, मोहन इज अ प्रॉपर नाउन. वेरी गुड. एंड व्हाट वी कैन बी से इट आउट टू बॉय हियर? क्योंकि गुड तो हमें पता ही है ना सबको, गुड क्या है? एडजेक्टिव. इट्स नॉट अ नाउन बिकॉज it gives meaning to noun. That is why it's an adjective. So boy is what? A particular, मैं नाम तो नहीं particularly वे से तो नहीं बता रही ना कुछ, तो boy क्या होगा यहां पे? Common noun. Is it clear? Good. If I want to be say Ganga is a pious river. गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है. क्लियर? सो गंगा तो मैं पर्टिकुलर बता रही हूं, नेम गंगा. रिवर क्या है? इट्स अ कॉमन नाउन. क्लियर? ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. मैंने बोला दिस चेयर, दिस इज द चेयर. चेयर क्या है इसमें? अगेन कॉमन नाउन है. अब मैं बोलूं दिस ब्लैक पेन इज माइन. ये काला पेन जो है वो मेरा है. अब मैं पर्टिकुलर बता रही हूं इसमें कौन सा पेन? ब्लैक पेन. सो ब्लैक पेन किस में आएगा? इट कम्स इन द प्रॉपर नाउन. इज इट क्लियर नाउ? द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम इन अ प्रॉपर एज वेल एज इन अ कॉमन नाउन. डन? Now come to the next concrete noun. Third one. Next concrete noun is, third one is a collective noun. अब collective noun में क्या बताया था मैंने? It's give the information of the collection of a things, of a person, place or thing. Clear? ये collection होती है. It's a collection of person or thing. कैसे? अब आर्मी क्या होती है? What is army? आप लोग बताइए. आर्मी में कौन होता है? आर्मी में बहुत सारे जवान होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सोल्जर्स. लाइक अब काफी सारे जो सोल्जर्स होते हैं तो उनको क्यों नाम दिया जाता है आर्मी? क्योंकि जो कलेक्शन होती है ना, व्हाट वी आर कलेक्टिंग ऑन इट, दैट वी आर गिविंग देम वन नेम टू सजेस्ट. हम ये तो नहीं बोलेंगे लॉट्स ऑफ सोल्जर्स आर देयर. नो. सो वी आर गिविंग देम वन नेम. हम उन्हें एक नाम देते हैं. वो नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड आर्मी. सो आर्मी किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में. क्योंकि ये किसकी कलेक्शंस होती हैं? सोल्जर की. क्लियर हुआ? अब बहुत इजी एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू. परिवार. परिवार मीन्स फैमिली. फैमिली क्या है? व्हाट इज फैमिली? उसमें क्या एक बंदे से फैमिली बन जाती है? नो, वी वोंट बी मेड अ फैमिली विद वन पर्सन. वी मेड अ फैमिली विद टू और मोर पर्सन. सो दैट इज कॉल्ड फैमिली. अब दो से ज्यादा जब आदमी लोग आ जाते हैं, लोग, औरत, बच्चे, बूढ़े, सब, दैट इज कम इन व्हाट? इन वन नेम. वी कैन बी से इट आउट टू देम व्हाट? फैमिली. राइट. सो फैमिली इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन. क्लियर? एंड व्हाट वी से, वन मोर एग्जाम्पल फॉर दैट. नेशन. राष्ट्र. राष्ट्र में कौन है? सब लोग. क्लियर? कितने लोग हैं, कितनी स्टेट्स हैं हमारी नेशन में, कितने कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो सब चीजों को मिला के हमने एक नाम दे दिया. क्या दे दिया उसे? वी आर सेइंग दैट नेशन. क्लियर? सो नेशन इज ऑल्सो कम इन दैट. एक और एग्जाम्पल. अब मार्केट्स में जाते हैं. क्लियर? वेन यू आर गोइंग टू द मार्केट्स, यू आर सीइंग व्हाट? क्या देखते हैं वहां पे आप? You see what? You see crowd there. भीड़ देखते हैं. भीड़, बहुत सारी भीड़ होती है. किसकी भीड़ होती है? लोगों की भीड़. अब लोगों की जो भीड़ होती है तो काफी सारे लोग होंगे वहां पे.
और उसको एक नाम दे दिया गया, व्हाट वी कैन से टू देम, भीड़। तो भीड़ को हम किससे डिनोट करेंगे, क्राउड से। भीड़ इज अ क्राउड। सो राइट इट डाउन दिस इन योर कॉपी, कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Done. Very good. So write it down. Hurry up. Be fast. Write it out in your copies. Just make one thing in your mind that काफी सारी चीजों की कलेक्शन जब होती है, एक नाम से उसे डिनोट करते हैं, that is called collective noun. Is it clear now? Very good. इसी तरह ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे. वी आर गोइंग ऑन अ स्टेप बाय स्टेप. क्लियर? जो ही मैंने आपको बाद फर्स्ट लेक्चर में बताई थी आपके. सो डोंट वरी, टेक दीज थिंग्स क्लियर इन योर माइंड, डोंट फील एनी हेजिटेशन. डन. और इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी. ये नहीं होगा कि आप कॉपीज में लिख रहे हैं. क्लियर? बिकॉज लिखना हमारा मोटिव नहीं है. हमारा मोटिव क्या है? वी वॉन्ट टू स्पीक ऑल्सो. सो ये आपका बेस क्लियर करने के लिए आपको बताया जा रहा है. उसके बाद आपके स्पीकिंग सेशंस होंगे. क्लियर? स्पीकिंग सेशंस में क्या होंगे? फिर आपसे टिप्स पे पूछा जाएगा, व्हाट इज प्रोनाउन. तो आप जल्दी से उसकी डेफिनेशन बता के मुझे बताओगे व्हाट इज नाउन. क्लियर? एंड व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, एडवर्ब, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर. सो दीज सेशंस आर गोइंग टू बी लेटर ऑन. हम लेटर ऑन करेंगे. क्लियर? अब ये नोट डाउन हो गया. नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा नाउन? विच नाउन? कंक्रीट नाउन में ही. कंक्रीट में ही हम करेंगे. कौन सा नाउन बचता है? फोर्थ वन, मेटीरियल नाउन. राइट. मेटीरियल नाउन इज देयर. अब बताइए, मेटीरियल नाउन जो है, मेटीरियल का क्या मतलब होता है? मटेरियल तो सुने होगा ना कि ये जो मैंने शर्ट पहनी है ये किस मटेरियल से बनी है, ये जो मैंने वॉच पहनी है ये किस मटेरियल से बनी है. तो मटेरियल क्या है? किसी भी चीज की वस्तु, किसी वस्तु या मैटर या सब्सटेंस का जब हम बात बताते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम बोलते हैं उसको दैट इज अ मटेरियल नाउन. क्लियर? अब क्लोथ्स किससे बनते हैं? किस मटेरियल से बनते हैं? बहुत सारे मटेरियल्स हैं. क्लियर? बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में. तो हम कौन कौन से मटेरियल के नाम लेंगे यहां पे? कुछ भी, एनी मटेरियल यू कैन बी से. फॉर एग्जाम्पल कॉटन. शर्ट कॉटन से बनती है. सिल्क भी यूज होता है क्लोथ्स बनाने में. सो सिल्क इन कॉटन इज व्हाट? दिस इज अ मटेरियल जिससे चीजें बनती हैं. ठीक है? जिससे चीजें बनाई जाती हैं. जैसे प्लास्टिक, बहुत सारी चीजें बनती हैं प्लास्टिक से. क्लियर? वुड, लकड़ी, उससे भी बहुत सारी चीजें, आपका फर्नीचर बनता है, टेबल, चेयर एंड ऑल. दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम व्हाट? मेड फ्रॉम द वुड. तो वुड इज व्हाट? वुड इज अ मटेरियल हियर. जो आप बैंगल्स पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, किससे बनते हैं? गोल्ड से. गोल्ड इज ऑल्सो अ मटेरियल हियर. क्लियर? एंड ऊन से क्या हम ऊनी स्वेटर बनाते हैं सर्दियों में. क्लियर? तो वूल इज व्हाट? अगेन कम इन मटेरियल नाउन. एंड कागज, पेपर, पेपर से भी बहुत सारी चीजें बनती है ना. तो पेपर इज व्हाट? अगेन मटेरियल नाउन. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द मटेरियल नाउन. राइट इट डाउन, हरी अप इन योर कॉपीज. Done? अब हमने कंक्रीट नाउन में 4 नाउन्स कर लिए हैं पूरी डिटेल में. कौन कौन से? कॉमन नाउन, बताइए मुझे, हरी अप, आप बताएंगे. सेकंड नाउन कौन सा किया हमने इसमें? राइट, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, और लास्ट हमने किया था मटेरियल नाउन.
Is it clear now? Now come to the abstract noun. Fifth noun is your abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने जब आपको एग्जांपल दिया तो एब्स्ट्रैक्ट बताया था क्या होता है, इसमें आपकी फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं जो हम लोग शो करते हैं. क्लियर? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि अंदर से किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताना. एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. फॉर एग्जांपल ईमानदारी. अब मैंने बोला ये लड़का बहुत ईमानदार है, तो दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट बॉय. ऑनेस्ट बोला मैंने. ऑनेस्ट क्या है? बॉय की विशेषता को बताया जा रहा है ऑनेस्ट के थ्रू. तो ऑनेस्ट इज व्हाट? क्या होगा ऑनेस्ट? टेल मी, हरी अप. ऑनेस्ट इज अ नाउन और ऑनेस्ट इज अ एडजेक्टिव. ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, राइट? बट ऑनेस्टी इज अ नाउन. क्लियर? एंड फॉर एग्जाम्पल सच्चाई. क्या होती है सच्चाई? ट्रूथ. गुड. सो ट्रूथ इज व्हाट? ट्रूथ इज अगेन नाउन. सो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है. जैसे कंक्रीट नाउन था, कंक्रीट में 4 नाउन्स आए. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसमें हमने उसे टाइप्स होती हैं जिसमें हमने उसे डिवाइड किया होता है. तो सबसे पहले मैं इनकी टाइप्स करवाती हूं. अब हम बताएंगे क्वालिटी कैसे बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज की. क्वालिटी मींस किसी चीज की विशेषता कैसे बताई जाती है. अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मींस किसी भी व्यक्ति की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, राइट? अब स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ हमने कल लास्ट लेसन में इंट्रोडक्शन में किया था. व्हाट इज स्ट्रेंथ? मींस आपकी ताकत. कौन सी चीज आपको प्रोत्साहित करती है चीजें करने के लिए? दैट इज योर स्ट्रेंथ. क्लियर? और विशेषता में क्या आएगा? हाइट. योर हाइट कम्स इन दैट. ठीक है? आपकी कितनी हाइट है, लंबे हो छोटे हो. क्लियर? सो हाइट इज ऑल्सो व्हाट? हाइट इज अ क्वालिटी. क्लियर? दैट इज ऑल रिलेटेड टू द क्वालिटी. एक और मैंने अभी करवाया था ट्रुथ. सच्चाई. सच्चाई भी विशेषता बताई जाती है किसी की. क्लियर? सो सच्चाई इज व्हाट? सच्चाई इज ऑल्सो अ क्वालिटी. ट्रुथ इज ऑल्सो अ क्वालिटी. क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड. नेक्स्ट कम्स योर कंडीशन. इन योर कंडीशन मीन्स अवस्था. अब अवस्था को हम कैसे बताएंगे? अब जैसे मैंने बोला कि यंगस्टर्स, तो उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? यूथ. बचपन को चाइल्डहुड. क्लियर? अब कोई सो रहा है तो स्लीप. डेथ. दीज ऑल आर कम इन योर कंडीशन. ठीक है? अवस्था को जो चीज बताते हैं दैट इज कम इन द कंडीशन. अब और एक एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग इसमें. आप लोग बताइए मुझे और क्या. बहुत ही सिंपल एग्जांपल. हमारा भारत देश क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है? वाई इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री? वाई इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री? एक बहुत ही बड़ा सोशल एविल है हमारी सोसाइटी में. बहुत ही बड़ा सामाजिक, क्या बोलते हैं उसे, सामाजिक एविल, सामाजिक बुराई है. बताइए. पॉवर्टी. ठीक है? पॉवर्टी क्या है? सामाजिक बुराई है. दैट इज ऑल्सो अवस्था. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट वन मीन्स एक्शन. कार्य. एक्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे आएंगे? एक्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हंसना. ये मैंने अभी आपको बताया था. हंसना को क्या बोलते हैं हम? लाफ्टर. एंड व्हाट वी आर सेइंग टू, कोई चीज का हिलना. तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मूवमेंट
Movement is also action. Clear? And what we say, दर्द हो रहा है मुझे, मेरी बाजू में बहुत दर्द है. That is what? I'm having a pain in my arm. So pain is what? Again, pain is action. Clear? And the fourth type of the abstract noun is name of art and science. Name of art and science. कला विज्ञान के नाम, किसी भी कला का नाम या किसी भी विज्ञान का नाम. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों में चित्र बनाने की कला होती है, वो क्या बोलते हैं हम उसे? पेंटिंग. पेंटिंग इज व्हाट? ऑल्सो कम इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर? और ग्रामर, ग्रामर इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर? ज्योमेट्री, इकोनॉमिक्स, ये क्या सारी चीजें हैं? दैट इज ऑल्सो नाउन, एब्स्ट्रैक्ट. Now you can note down this whole 4 types of abstract noun in your copies. Hurry up. Note it down, these 4 in your copies. डन. ये आपको टोटल 5 टाइप्स क्लियर हुई नाउन की. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीज ऑल नाउन. एनी डाउट इन दिस? टेल मी. कोई डाउट है इसमें? No doubt? Then it's really good one. हो गया नोट? Done? अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनमें हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं. ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड हियर. आप नोट में अपने लिख लीजिए. नोट में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया ही इज द रुस्तम ऑफ आवर क्लास. ही इज द रुस्तम ऑफ आवर क्लास. इसका मतलब क्या है? रुस्तम मतलब किसी को जैसे हमने टॉन्ट मारने के लिए बोलना है तो हम बोलते हैं ना, ही इज द रुस्तम ऑफ आवर क्लास, ही इज द किंग ऑफ आवर क्लास. सो रुस्तम वर्ड जो यहां पे है, नॉट यूज एज अ प्रॉपर नाउन. इस सेंटेंस में रुस्तम जो है प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं किया गया है. किस तरह यूज किया गया है? रुस्तम इज यूज एज अ कॉमन नाउन हियर. क्लियर? क्लास तो पता ही आपको कॉमन नाउन है. इज इट क्लियर? आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू. देयर आर 5 ओम प्रकाश इन माई क्लास. देयर आर 5 ओम प्रकाश इन माई क्लास. मेरी क्लास में 5 ओम प्रकाश हैं. क्लियर? अब मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया था प्रॉपर नाउन का, आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और अ थिंग. क्लियर? अ पर्टिकुलर पर्सन का नाम ओम प्रकाश तो आ रहा है, बट हम इसमें पर्टिकुलर ओम प्रकाश की बात तो कर ही नहीं रहे हैं. क्यों?
क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारी क्लास में 5 ओम प्रकाश है. मैंने किसी को पॉइंट तो नहीं करके बोला कौन सा ओम प्रकाश. आई एम नॉट गिविंग एनी सरनेम ऑफ दैट सो दैट आई कैन नो वेरी वेल दैट व्हाट ओम प्रकाश आई एम टॉकिंग अबाउट. क्लियर. सो इसमें जो ओम प्रकाश यूज हुआ है, अगेन इट्स यूज एज अ कॉमन नाउन. It is not used as a proper noun. Clear? Note it down in your copy. Now I'm going to tell you कि हम common noun को और material noun को कैसे interchangeably use कर रहे हैं. Means कई बार आपका मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन भी यूज होता है. कैसे? देखिए, मैंने बोला राइस इज इटन. राइस खा चुके हैं. ठीक है, हमने राइस खा लिए हैं. तो इसमें जो राइस है वो एज अ क्या यूज हो रहा है? एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं और एज अ मटेरियल नाउन यूज कर रहे हैं. हम यहां पे जो राइस है एज अ मटेरियल नाउन यूज कर रहे हैं. क्लियर? अब मैं एक और एग्जांपल देती हूं राइस से. मैंने बोला राइस इज अ प्लांट. राइस क्या है? एक पौधा है. क्लियर? अब इसमें जो राइस यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, इट इज यूज एज अ कॉमन नाउन. क्यों कॉमन नाउन यूज हो रहा है? बिकॉज बहुत सारे जो पौधे होते हैं राइस के होते हैं. क्लियर? तो हम पौधों की तरफ डिनोट करके इसको राइस को बता रहे हैं. दैट इज वाई हम इसको मटेरियल नाउन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कॉमन नाउन में ही कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? नोट इट डाउन इन योर कॉपीज. हरी अप. Is it clear to all of you? Now, proper material and abstract noun हमेशा ही सिंगुलर्स में आते हैं. ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए. Proper, abstract and material noun always come in singulars. For example, proper noun का एक एग्जाम्पल देती हूं. मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय. राम क्या है? राम इज अ proper noun here. Clear? And is a helping verb. और is क्या डिनोट करता है? सिंगुलर्स को. This is the example for that. Clear? मटेरियल नाउन के साथ एक एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं. आयरन इज अ हार्ड मेटल. आयरन क्या है? लोहा क्या है? एक बहुत ही सख्त धातु है. क्लियर? सो यहां पे आयरन क्या है? मटेरियल नाउन. और मटेरियल नाउन किसके साथ फॉलो हो रहा है? सिंगुलर वर्ब के साथ. क्लियर? सो ये एग्जांपल्स हैं कि हम जो प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं. अब देखो, आप लोग आगे जाके कॉम्पिटिटिव बैचेस की भी तैयारी करोगे. क्लियर? कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे, आपने गवर्नमेंट सर्विस में जाना होगा, आप में से कई स्टूडेंट्स ने. अब जो मैं रूल्स बता रही हूं इसके नाउन्स को, मेक दैट रूल्स क्लियर विद योर माइंड. इन योर माइंड. अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है इन चीजों को कि जहां पे भी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आएगा, वहां पे जो वर्ब फॉलो होगा उस सेंटेंस में वो क्या होगा? इट्स ऑलवेज कम इन सिंगुलर्स. क्लियर हुआ? गुड. राइट इट डाउन. हरी अप.
Done? Now we are going to do noun as a number. The noun. How we use the noun as a number? हम noun को number कैसे कर सकते हैं? For example, गिन कैसे सकते हैं? When one thing is spoken of, write it down. जब एक चीज बोली जाती है तो नाउन क्या यूज होता है? सिंगुलर्स. क्लियर? द नाउन यूज इज सिंगुलर्स, जो मैंने अभी चीज आपको बताई. ठीक है? व्हेन टू और मोर थिंग्स आर स्पोकन ऑफ, तब कौन सा नाउन यूज होगा? व्हेन टू और more things are spoken of, then we are using which? We are using plural noun here. Clear? We are using plural noun with two or more things spoken of. अगर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन. अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं. राइट इट डाउन दिस डेफिनेशन. हरी अप. राइट इट डाउन. हरी अप दिस डेफिनेशन. When one thing is spoken of, the noun is used as a singular, and the one, two or more things are spoken of, the noun is used as a plural. Clear? इसे हम सिंगुलर नंबर्स भी बोल देते हैं. सिंगुलर नंबर नाउन और प्लूरल नंबर्स नाउन. ठीक है? I'm giving you some examples for that. Singular noun, plural noun. अब देखिए हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन करेंगे. सबसे पहला मैंने वर्ड लिखा हैंड. इसका प्लूरल क्या होगा? हैंड. अगर एक की बात कर रहे हैं, एक हाथ की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हैंड. अगर हम दोनों हाथों की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हैंड्स. राइट. इसके स्पेलिंग क्या होंगे? HANDS. हैंड्स. ES नहीं लगता कभी भी, S लगता है हैंड्स के साथ. क्लियर? ES वाले कुछ चीजें बताती हूं. जैसे मैंने बोला मेरे पास एक डिब्बा है. आई हैव अ बॉक्स. एक बॉक्स है तो बॉक्स लगाएंगे. अगर आपके पास एक से ज्यादा बक्से हैं तो आप बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ बॉक्सेस. ES. Here you can put ES with the boxes. Clear? ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. अगर एक चाकू है तो आप बोलेंगे नाइफ. अगर ज्यादा चाकू है तो नाइफ्स. क्लियर? एक बीवी को वाइफ, ज्यादा को वाइफ्स. क्लियर? अगर एक पत्ते की बात करें तो दैट इज अ लीफ. ज्यादा पत्तों की बात करें तो लीव्स. क्लियर? अगर एक पैर की बात करें तो वी आर गोइंग टू से फुट. ज्यादा की बात करें तो फीट. क्लियर? अगर एक लोमड़ी की बात करें तो वॉल्फ. लोमड़ी की तरह एक जानवर होता है ना, दैट इज वॉल्फ. क्लियर? अगर एक ऑक्स की बात करें हम तो ऑक्स का प्लूरल क्या यूज होता है? ऑक्सन. क्लियर? थीफ. एक थीफ मतलब एक चोर. ज्यादा चोर को क्या बोलेंगे? थीव्स.
EVES. जिनकी हाइट बहुत ही कम होती है, जो बहुत ही कम हाइट के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोने लोग. क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ. और ज्यादा है तो ड्वार्फ्स. क्लियर? इफ आई वॉन्ट टू बी से, मेरे पास एक चाबी है, आई हैव वन की. मेरे पास ज्यादा चाबियां हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ कीज. डन. नेक्स्ट इज, एक आदमी को हम क्या बोलेंगे? मैन. ध्यान से देखना, MAN. ये बहुत लोग, तुम लोग मिस्टेक्स करते हो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक्स करते हैं. एक आदमी को हम मैन बोलते हैं, ज्यादा को मैन बोलते हैं, मैन्स नहीं बोलते, एस नहीं लगता है ज्यादा के साथ. ये चीज क्लियर रखना. क्लियर? अब मैंने बोला कि वहां पे बहुत से आदमी खड़े हैं, तो बोलेंगे लॉट्स ऑफ मैन आर स्टैंडिंग देयर. ठीक है? तो मैंने ये नहीं बोलूंगी लॉट्स ऑफ मैन्स आर स्टैंडिंग देयर. मैं क्या बोलूंगी? आई वॉन्ट टू बी से एट दैट टाइम लॉट्स ऑफ men are standing there. Clear? This men. ऐसे ही women के लिए woman. I am a successful woman. मैं एक सक्सेसफुल वुमेन हूं. क्लियर? बहुत सारी औरतों के लिए हम यूज करेंगे women, not womens. एस नहीं लगाएंगे हम उसके साथ. इट्स रॉन्ग, गलत होता है वो. क्लियर? ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज पे. हरी अप. नाउन नंबर. नाउन नंबर में कैसे यूज करते हैं, मतलब एक के साथ और अनेक के साथ हम कैसे लगाते हैं. राइट इट डाउन नाउ. हरी अप. Is it clear now? Now come to the next one. अभी मैंने आपको नाउन नंबर के साथ करवाया. क्लियर? अब हम करेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं. नाउन तो हमने कर लिए, 5 टाइप्स कर ली, उसमें नंबर्स कर लिए कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं. ये चीजें आपको सारी क्लियर होगी. क्लियर? अब मैं आपको कुछ कैटेगरी बताऊंगी नाउन की, कि जिसमें हम 2 टाइप्स की कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे नाउन को. एक होगी उसकी काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज द अनकाउंटेबल नाउन. क्लियर? लुक हियर. अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन. अब देखिए, काउंटेबल का मतलब क्या होता है. व्हाट इज काउंटेबल? मींस जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं. क्लियर? किन किन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं? हम रुपीस को काउंट कर सकते हैं, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, और कौन सी चीज, जो भी चीज हम काउंट कर सकते हैं, वी वांट टू बी से एट दैट टाइम काउंटेबल नाउन. क्लियर? अब जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो किस में आएंगी? किस किस चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो आएंगी अनकाउंटेबल नाउन में. क्लियर? अब आप बताइए मुझे, किन किन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते? क्या आप बादलों को काउंट कर सकते हो? क्या आप अर्थ को काउंट कर सकते हो? क्या आप यू कैन काउंट शुगर? कैन यू काउंट कॉफी? कैन यू काउंट मिल्क? कैन यू काउंट पेट्रोल? नो, वी कांट काउंट दीज थिंग्स. हम इनको काउंट कर ही नहीं. कैसे करोगे काउंट, बताओ. मैं बोलूंगी पेट्रोल काउंट करो इसको, आई वॉन्ट बी काउंट. हाँ, जब लीटर्स में आ जाएगा देन आई कैन काउंट इट आउट कि 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल. क्लियर? बट नॉर्मली अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, इट कम्स इन द अनकाउंटेबल नाउन. इट वॉन्ट बी कम इन द काउंटेबल नाउन एट दैट टाइम. काउंटेबल में वही नाउन्स आएंगे जो चीजें गिनी जा सकती हैं, और अनकाउंटेबल में वो आएंगे जो गिनी नहीं जा सकती हैं.
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें देखिए काउंटेबल नाउन, कुछ काउंटेबल नाउन बताती हूं मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, पेन्स, chairs. These are countable noun, and uncountable nouns are petrol, sugar, milk, gold, coffee, water. So these are all called the uncountable nouns. We can't be count these nouns. ठीक है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते. अब मैं आपको एक नोट डाउन कर लीजिए हरी अब कॉपीज में. डन. अब इधर देखिए, अब मैं एक कीवर्ड लगा रही हूं यहां पे, सम. एक वर्ड में सम बोलूंगी, काउंटेबल के साथ भी लगाऊंगी और अनकाउंटेबल के साथ भी सम आएगा. अब देखिए सम अनकाउंटेबल के साथ कब आएगा? सम अनकाउंटेबल के साथ तब आएगा जब आप जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे और कभी होते भी नहीं है. क्लियर? और सम काउंटेबल नाउन के साथ कब आएगा? सम का मतलब क्या होता है? कुछ. ठीक है, अगर मैंने सेंटेंस में बोलना है मेरे को कुछ फल चाहिए, तो फल क्या है? काउंट कर सकते हैं हम फल्स को, फलों को काउंट कर सकते हैं ना. तो हम इसमें लिखेंगे सम, कुछ फल, सम फ्रूट्स. तो सम काउंटेबल नाउन के साथ कब आएगा? जब वो काउंटेबल प्लूरल नाउन होंगे. दैट इज कॉल्ड काउंटेबल प्लूरल नाउन. ठीक है, तब हम सम को इसमें ऐड करेंगे. अब देखिए कैसे. एग्जाम्पल, अब भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी. फल काउंट हो सकते हैं, बुक काउंट हो सकती है. ठीक है, चेयर्स काउंट हो सकती हैं, फैंस काउंट हो सकते हैं, पर्सन्स काउंट हो सकते हैं, पीपल काउंट हो सकते हैं. तो ये क्या है सारी चीजें? इनमें क्या है? यू कांट बी पुट इट आउट, यू हैव टू पुट एस विद दीज नाउन. क्लियर? जो काउंट कर सकते हैं जिन नाउन्स को, हम उनके साथ एस अंत में, लास्ट में वी आर पुटिंग आउट एस विद देम. तो वो कौन से नाउन बन जाएंगे? काउंटेबल प्लूरल नाउन. अब मैंने बोला मुझे कुछ फल चाहिए, तो मैं आई गोइंग टू से आई वांट सम फ्रूट्स. तो फ्रूट्स क्या है? इट्स अ काउंटेबल प्लूरल नाउन. एस लगा है इसके साथ, इससे हमें पता चल रहा है कि हम इसके साथ सम लगा रहे हैं. तो सम का मतलब कुछ, मतलब काउंट करने. कुछ का मतलब एक तो चीज होगी नहीं, एक से ज्यादा ही होंगी ना कुछ का मतलब. सो एट दैट टाइम यू शुड बी पुट इट आउट सम विद फ्रूट्स. एक और एग्जाम्पल, मुझे कुछ बोतलें चाहिए. आई वॉन्ट सम. बोतल को क्या बोलते हैं? बॉटल्स. ठीक है, प्लूरल है. क्यों? क्योंकि मैंने बोला बोतलें चाहिए. तो एट दैट टाइम आई एम पुटिंग काउंटेबल प्लूरल नाउन हियर. आई एम नॉट पुटिंग simple countable noun. I'm putting countable plural noun, not singular noun here. Because some का मतलब होता है, again I am saying some means not single thing, it's lots of things come in this. Clear? Any other example for that? I want some books. मुझे कुछ किताबें चाहिए. Again, countable plural noun I use here. Clear? I want to be say, I want some potatoes. मुझे कुछ आलू चाहिए. I want some potatoes. Again S लगाया मैंने, इसलिए मैंने आपको पहले क्या करवाया था? नाउन यूज एज अ नंबर. नंबर में नाउन कैसे यूज होता है, मतलब सिंगुलर्स में कैसे यूज होते हैं और प्लूरल्स में कैसे यूज होते हैं. यही मकसद था करवाने का वो वाला चैप्टर पहले, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए. काउंटेबल नाउन के साथ सम कब लगता है. जो सम एक कीवर्ड है, हम काउंटेबल नाउन के साथ कब लगाते हैं. क्लियर? मैंने बोला कि मैं कुछ कंट्रीज में विजिट किया, तो मैं बोलूंगी आई विजिटेड सम कंट्रीज. अगेन काउंटेबल प्लूरल नाउन इज दैट.
आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू नाउ. ये आपको क्लियर हो गया. क्लियर. अब आइए इधर, अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल के नाउन के साथ सम कब लगेगा? वी आर पुटिंग सम विद अनकाउंटेबल नाउन at that time when they are not having a plural form or they are not even come in that one. हम कभी उसके साथ s लगा ही नहीं सकते हैं. It's wrong. तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक आएगी. किस लिए कर रहे हैं हम ग्रामर? हम ग्रामर कर रहे हैं कि वी कैन बी नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल इन दैट. बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आ जाए. तो अच्छी तरह से और डीपली नॉलेज के लिए यू शुड बी मेक क्लियर दिस थिंग इन योर माइंड कि जब भी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जब भी उनके साथ सम आएगा तो एस वी वोंट बी पुट एस विद देम. हम एस नहीं पुट करेंगे उनके साथ. इधर देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मुझे कुछ पानी चाहिए. आई वॉन्ट सम वाटर. क्लियर. तो क्या आ गया? मुझे कुछ पानी चाहिए. आई वॉन्ट सम वाटर्स. अगर मैं यहां पे वाटर्स बोलूं तो इट्स रॉन्ग. वी वॉन्ट बी पुट एस विद द वाटर. We are only putting simple word that is water, singular. Singular plural कुछ होता ही नहीं है waters में, water में, sorry. Waters हम कभी नहीं बोलते हैं. अब मैंने बोला मेरे टीचर ने मुझे कुछ होमवर्क दिया. My teacher gave me some homeworks होगा या homework होगा? होमवर्क को आप काउंट कर सकते हो? कर सकते हैं? सोचिए, बताइए. हरिया, होमवर्क काउंट हो सकता है? होमवर्क के सब्जेक्ट्स काउंट हो सकते हैं. होमवर्क में मुझे कितने सब्जेक्ट्स का होमवर्क मिला? 1 सब्जेक्ट का मिला, 2 सब्जेक्ट का मिला या 3 सब्जेक्ट का मिला? एट दैट टाइम आप सब्जेक्ट्स काउंट कर रहे हैं. आप लोग होमवर्क को नहीं काउंट कर रहे हैं. क्लियर. सो हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट, माई टीचर गेव मी सम होमवर्क टू मी. यू वॉन्ट बी पुट एस विद देम अगेन. क्लियर. अब हम बात करते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए. क्लियर. अब देखिए, सबके फादर और मदर किसी ना किसी को पैसे देते हैं. आप लोग बोलते हो ना कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए. अब पैसों को हम काउंट कर सकते हैं. मनी, मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रुपीज. रुपीज को तो हम काउंट कर सकते हैं. तो हम बोलेंगे माई फादर गेव मी 2 रुपी नोट, 3 रुपी नोट और 100 रुपीज, 100 rupees and all. So that is countable at that time. But money is won't be countable. Count कभी हो ही नहीं सकती है money. तो money किस में आएगा? Uncountable में. My father gave me some money, not monies. Make this thing clear in your mind. Monies नहीं आएगा कभी और ना कभी आता है. Clear? Now, you all are having cars with yourself. आप सबके पास गाड़ियां होंगी. क्लियर. अब सबके पास गाड़ियां हैं तो पेट्रोल भी डलवाना होता है उसमें. पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं. अब बताइए कि मैंने बोला कि मैंने कुछ पेट्रोल डलवाया. ठीक है, मैंने गाड़ी में कुछ पेट्रोल डलवाया. तो कुछ पेट्रोल क्या आएगा? सम पेट्रोल. यू वॉन्ट बी पुट एस अगेन, अदरवाइज इट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग. वो गलत होता है ग्रामेटिकली. क्लियर. पेट्रोल के साथ भी कभी हम एस नहीं लगाएंगे. क्लियर हुआ. अब मैंने बात की और वर्ड्स, ये वर्ड्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और कभी भूलना मत ये वाले वर्ड्स, बिकॉज मैं उन वर्ड्स की ही एग्जांपल दे रही हूं जो कि हम लोग ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं. बाकी नॉर्मल तो हमें पता ही है एस एस किसके साथ लगता है जो काउंटेबल कर सकते हैं. बट इन चीजों के साथ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे काउंट करें इसे, है ना. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट वर्ड इज मेरे पिताजी ने मुझे कुछ एडवाइस दी. तो मैं ये बोलूंगी माई फादर गेव मी सम एडवाइसेस. हाँ, एडवाइस को काउंट कर सकते हैं. क्या एडवाइस दी? काउंट कर सकते हो आप? कैन यू काउंट दैट? बताइए, हरी अप. एडवाइस को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वी कांट काउंट एडवाइस. हम एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये किस में आएगी? इट्स कम इन द अनकाउंटेबल नाउन. सो हम इस तरह से बोलेंगे माई फादर गेव मी सम एडवाइस, नॉट एडवाइसेस. एडवाइसेस नहीं आएगा इसमें. क्लियर. अब
मैंने बोला मेरे पास कुछ सूचना है, मैंने ये नहीं बोला कि एक सूचना है, दो सूचना है या 1000 सूचनाएं हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास कुछ सूचना है। सूचना को क्या बोलते हैं हम? इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब सूचना को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं तो मैं क्या बोलूंगी? काउंट कर सकते हैं इसे इंफॉर्मेशन को? बताइए, टेल मी, हरी अप। क्या आप इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप इंफॉर्मेशन को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए इधर, मैंने बोला आई हैव सम इंफॉर्मेशन विद मी, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस नहीं, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो ये ही कुछ वर्ड्स होते हैं अनकाउंटेबल में जिनके साथ आप एस नहीं लगा सकते। क्लियर? और काउंटेबल के साथ हमेशा एस आएगा। काउंटेबल के साथ आप ये मत करना कि एस नहीं लगाना है, यू हैव टू पुट एस विद देम, बट इन विद अनकाउंटेबल नाउन्स यू वोंट बी पुट एस विद देम। क्लियर? इसमें कुछ डाउट बताइए, एनी डाउट इन दिस? शुड आई रब दिस और नॉट? नोट डाउन कर लिया सबने? पहले मैं ये रब कर देती हूं, या आप नोट डाउन कर लीजिए। हरिया, डन, वेरी गुड। अब जल्दी से जरिए रिवाइज कर लीजिए, तब तक मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूं करने के लिए। क्लियर? उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करना। हो गया रिवाइज सबका? जल्दी से रिवाइज कीजिए, उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज लिख रही हूं, आपको फिल आउट करने हैं ये। डू फास्ट, हरी अप। हाँ जी, अभी इधर देखिए जरा। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है हैव सम डैश इन माई पर्स, दो मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको। Next, my father gave me some dash, advice or advices. Again, the options. Two options are there. Next is give me some dash, water or waters. I have a piece of, मेरे पास एक टुकड़ी, सॉरी अ पीस ऑफ तो अभी मैंने नहीं करवाया। आई हैव सम डैश फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ डैश है। इंफॉर्मेशन आएगा और इंफॉर्मेशंस आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज दैट I bought some dash from market. बनाना आएगा या फिर बनानास आएगा। नोट डाउन कीजिए और आप कॉपीज में।
डन। अब फर्स्ट वन देखिए सेंटेंस, आई हैव सम डैश इन माई पर्स। मेरे पर्स में कुछ फल हैं। अब बताइए मुझे फल काउंटेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? टेल मी, फ्रूट्स काउंटेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? फल को आप काउंट कर सकते हो ना, गिन सकते हो ना कितने फल हैं। तो अगर हम गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन में आएंगे, और काउंटेबल नाउन के साथ सम लगा हुआ है। क्लियर? अब डेफिनेशन, अब मैंने आपको जो पहले लेक्चर दिया उसमें क्या बताया था? आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि व्हेन सम कम विद द काउंटेबल नाउन, एट दैट टाइम यू हैव टू पुट काउंटेबल प्लूरल नाउन देयर. You won't be put countable noun only. You have to put countable plural noun there, because sum denotes what? Sum denotes lots of things. Sum not denotes only one thing. Clear? Sum denotes two or more things in that. So at that time, what comes in this? In this, your fruits come. Clear? Fruit नहीं आएगा क्योंकि count ही नहीं हो सकता है fruit तो. Next देखिए, my father gave me some dash. मेरे पिताजी ने मुझे कुछ एडवाइस दी. एडवाइस काउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए. नहीं कर सकते ना एडवाइस को काउंट. सो एडवाइस को अगर हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो वो किस में आया? अनकाउंटेबल नाउन में जो हमने किए थे, है ना. अनकाउंटेबल नाउन में मैंने बताया था यू वॉन्ट बी पुट एस विद द अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा इसमें? एडवाइस. एडवाइसेस नहीं आएगा. क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, गिव मी सम वाटर या वाटर्स. मुझे कुछ पानी दीजिए. पानी को काउंट कर सकते? कुछ पानी को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते. तो किस में आएगा? किस कैटेगरी में? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल में इट कम्स इन दैट. सो अनकाउंटेबल में अगेन एस हम नहीं पुट करेंगे, तो क्या आएगा? वाटर. वाटर्स नहीं आएगा. नेक्स्ट इज आई हैव सम डैश फॉर यू. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन है. ठीक है, सूचना है. सूचना अगेन कुछ सूचना है, काउंट कर सकते हैं आप? हम लोग काउंट नहीं कर सकते. सूचना को काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल में आएगा. अनकाउंटेबल में आएगा तो सम लगा हुआ है, तो यू वॉन्ट बी पुट एस विद देम. ठीक है, तो सिंपल इंफॉर्मेशन इज कम, इंफॉर्मेशन नहीं आएगा. नेक्स्ट वन इज आई बॉट सम डैश फ्रॉम द मार्केट. मैंने मार्केट से कुछ बनाना केले खरीदे. केले क्या है? काउंट कर सकते हैं केलों को हम? राइट, वी आर काउंट. हम काउंट कर सकते हैं उन्हें. तो काउंट कर सकते हैं तो इट कम्स इन विच कैटेगरी? इट कम्स इन द काउंटेबल कैटेगरी. इन द काउंटेबल कैटेगरी इफ सम कम्स विद द काउंटेबल नाउन, तो एट दैट टाइम इट कम विद द काउंटेबल प्लूरल नाउन. तो प्लूरल नाउन के साथ आएगा तो क्या लगेगा? बनानास, नॉट बनाना. ये क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट हो इस लेक्चर में? एनी डाउट? मेरे को तो नहीं लगता कि अब कोई डाउट होना चाहिए कि इतना डीपली समझाने के बाद. क्लियर? सो मेक दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड. टिल देन, बाय बाय. आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.